Welcome to Super Primetime Max and your favorite program on news television, The Debate with Arnab. And ladies and gentlemen, I have an announcement at the start of the program tonight. This is the kind of announcement that we savor, we relish, and so I'm going to take my time to share this announcement with you, ladies and gentlemen. The Republic Media Network is proud to share with you the fact that our network has recorded a long interview with Pradhan Mantri ji, with the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, this morning. And in that interview, in that conversation, which went in from an informal conversation on his lawns, and then we met after some time since the Republic Summit, had an informal chat. I asked him how the campaign was going. Here are some wonderful pictures, some great moments from our conversation on this warm May morning, ladies and gentlemen. And then we went on for the interview later. And I'm not going to tell you everything about the interview today because I want to build the suspense. I can only tell you that in this interview, the Prime Minister has very sharply and in his characteristic style addressed the hardest political issues of this mega 2024 campaign. Viewers, having had the privilege of several interviews with the Prime Minister over the last 20 years, and specifically quite a few interviews and conversations and opportunities to meet and observe and learn from him quite a few times in interviews over the last 10 years that he's been the Prime Minister of the country. This one, I can tell you without doubt, is exceptional. The Prime Minister has complete and remarkable clarity on issues, from the Ram Mandir to the caste issue, to the Muslim quota, to India's geostrategic positioning. We've always known him as a master communicator. But if you see this interview, you will yourself realize that 400 par is a completely achievable target, and that the Prime Minister believes in it. But most importantly, in this interview, you will get the clearest picture of the issues on which he's seeking this mandate from you. Before the interview, as I told you, I could snatch a few moments from him, maybe about 10 minutes of an informal conversation with him on the lawns of 7 Lok Kalyan Marg. On a warm May morning, he looked thoroughly relaxed and fresh as we strolled around the lawns of 7 Lok Kalyan Marg this morning. I'll run a small clip, and remember, the interview is playing out tomorrow. नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं प्रधानमंत्री जी? देखिए, मजदूरी कर रहे हैं। नहीं, आप इतना आजकल घूम रहे हैं और बहुत कैंपेनिंग बहुत इंटेंस है इस बार आपकी। वैसे हर चुनाव में करते हैं, कोई ज़्यादा अलग से कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है। पर इस बार रोड शोज बहुत हैं आपके, ज़्यादातर हमने देखा हुआ क्या है जी कि शाम को हमारा एक प्रॉब्लम ये है, ये हेलीकॉप्टर का प्रॉब्लम ये है कि सूर्यास्त के पहले आपको लास्ट डेस्टिनेशन छोड़ना करना पड़ता है जी। उसके बाद एक्चुअली कैंपेन के लिए 3-4 घंटे का सही समय होता है। अब वो मेरे जैसे को काम नहीं आता है, क्योंकि मेरे लिए तो फिर उसमें से मैंने एक रास्ता खोजा जी कि जहाँ मेरा डेस्टिनेशन ख़त्म हो जाता है तो मैं एक स्थान पे रोड शो कर लूँगा, तो एक एक्स्ट्रा कार्यक्रम मेरा। प्रधानमंत्री जी, मैंने जो ऑब्जर्व किया आपको, आप बहुत मास कांटेक्ट, 1-to-1 कांटेक्ट करते हैं जब आप जाते हैं। मैंने देखा अहमदाबाद में एक बुजुर्ग महिला ने आके राखी भी लगाई है आपको। जी। तो उस तरह का कांटेक्ट जो है वो रैली से ज़्यादा इन रोड शोज में भी होता होगा। वैसे रैली में भी अनुभव आता है, रोड शो में सिक्योरिटी के मर्यादाएं रहती हैं जी। तो मैं ज़्यादा उनको एड्रेस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि हाँ यार, कोई खड़ा है, कोई चाहता है। जैसे कुछ बच्चे आजकल पेंटिंग बना के लाते हैं, ले आते हैं। हाँ, लेकिन उनके समाधान के लिए मेरा मन करता है कि मैं उनको ले लूँ। अगर एड्रेस है तो मैं चिट्ठी लिखता हूँ बच्चों को जी।
तो मोदी जी ये कैंपेन मैं तो आपको बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, ये कैंपेन में कुछ अलग आपको लग रहा है पिछले 2014 या माहौल और माहौल की बात जो होते हैं इंटरव्यू से पहले पूछना चाहूँगा ओवरऑल माहौल कैसा लग रहा है आपको इस बार? देखिए 2014 के चुनाव में जब मैं गया जी तो देश मुझे जानता नहीं था। मैंने थोड़ा बहुत मीडिया से जानता था और मैं गुजरात में काम करता हूँ, उतना ही पता था उनको। उनको ये मालूम तो था नहीं भाई एक्चुअली क्या है, तो लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत थी। तो 2014 में देखता था, मैं जो चीज़ कहता था उसको वो बहुत ही एक प्रकार से नापने की कोशिश करता है, समझे उनकी आंखों से दिखता था। अच्छा कि ये क्या ये हो सकता है, क्या ये संभव है क्या, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं था। जी 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 तो उनके लिए सब नयापन था। 2019 में गया जी तो मैंने देखा कि एक बड़ा विश्वास का नज़र मुझको लग रहा है यार आदमी 14 में जो कहता था 5 साल उसने डिलीवर की बर्बाद नहीं किए। उसने लगातार जो कहता था उसको करने का प्रयास किया। जी लोग मुझे इस बात पे जज नहीं करते थे कि हुआ या नहीं हुआ, पूरा हुआ या आधा हुआ, लेकिन ये जज करते थे कि दिशा सही है कि नहीं, प्रयास ईमानदारी से हो रहा है कि नहीं, और मेहनत करने में कोई कमी है क्या। जी और इन सारी कसौटियों पे देश ने कम से कम मुझे पॉजिटिव पाया। 19 में जब मैं गया तो ये अनुभव था। जी 24 में मैं देख रहा हूँ जी कि मेरी सफलता ही मेरे लिए चुनौती बनती जा रही है। सफलता इसलिए चुनौती बनती जा रही है कि उनको लगता है यार ये 14 में कहता था, देखिए 19 में यहाँ तक गया, 19 में कहता था यहाँ तक गया। अब उनको अपेक्षाएं रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत कम है। अब सामान्य हिंदुस्तानी मानता है कि हमारा देश पीछे नहीं होना चाहिए, हमारा देश अब आधुनिक होना चाहिए, हमारे देश में वैज्ञानिकता होनी चाहिए। ये सामान्य मानवीय की सोच है और वो एडप्ट करता है। खास करके डिजिटल इंडिया ने जी उसको अनुभव करवाया जी 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 कि ये सब संभव है, हम भी ये कर सकते हैं। जी सामान्य मानवीय को, वरना टेक्नोलॉजी घर में घड़ी भी टाइम सेट करना है तो पहले सोचता था जी। कि घड़ी का टाइम सेट, तो बच्चे को बुलाता था, अरे देखो यार वो घड़ी लेट चल रही है, सेल बदलना है। तो आज ऐसा नहीं है एक, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये समय आकांक्षाओं का समय है, बहुत बड़ी आकांक्षाओं का समय है, और ये आकांक्षाओं का समय है तो मेरा उत्साह भी और बढ़ गया है।